سب سے پہلے آپ نے اس کی دیکھنی ہوتی گراری سیٹ کی، کہیں سے کوئی گراری خراب تو نہیں ٹھیک ہے. اور یہ دیکھیں یہ آلموسٹ نیو ہے بالکل. یہ چین کی آپ لک سے دیکھ سکتے ہیں یہ کالی بھی نہیں ہوئی، اس کا مطلب ہے کہ یہ بہت کم یوز ہوئی ہے. بالکل. اور اب اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ آپ کو سب سے پہلے تو ٹرانسپورٹ کا ایشو نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، وہ اس لیے کہ کتانیہ میں تھوڑا سا ٹرانسپورٹ کا بس کا آگے پیچھے سسٹم ہو جاتا ہے. زیادہ برا بھی نہیں ہے مگر زیادہ اچھا بھی نہیں ہے. ہیلو ایوری ون، سو مائی نیم از ثاقب اینڈ ویلکم ٹو مائی نیو بلاگ. تو آج کا سین یہ ہے کہ آج ہم ایک بہت ہی تجربہ کار بندے کے پاس آئے ہیں جو کہ سائیکل خریدنے میں بہت زیادہ تجربہ کار ہے. ٹھیک ہے، تو ابھی یہ ہمیں بتائیں گے کہ سائیکل یہ انہوں نے سائیکل خریدی ہے. ٹھیک ہے، ایک منٹ یہ تھوڑی سی آگے لے کے آئیں گے. کیا کہتے ہیں فہد بھائی، تھوڑی سی اس میں روشنی ذرا کم آ رہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ انہوں نے سائیکل خریدی ہے این وی کی. اور یہ کیسے پتہ لگ سکتا ہے کہ یہ 750 واٹ ہے؟ یار سب سے پہلے تو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے بیٹری. ٹھیک ہے، اب بیٹری میں دیکھتے ہو یہاں پہ لکھا ہوتا ہے 750 واٹ. ایک سیکنڈ، یہ بیٹری ہے. اور دوسری یہ ڈرائیو 624 واٹ کی یہ بتاتا ہے، ویسے 750 ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس کی موٹر ہے جو مین چیز ہے. ٹھیک ہے، روٹر آپ کہہ لیں جو موٹر ہے. ٹھیک ہے، اس نے بیسیکلی اسپن کرنا ہوتا ہے وہیل کو. تو یہ بیٹری صرف یہ پیچھے والے جو ٹائر ہے اس کو کھینچتی ہے. ایگزیکٹلی. تو یہ پیچھے والا، آگے والا تو جس طرح گاڑی کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، فرنٹ ویلر نہیں ہوتی، بیک ویلر ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس طرح یہ ہے. اور دوسرا یہ این وی کا ہے برانڈ. این وی اس ٹائم بہت ٹاپ کلاس ہے. یہ این وی کا برانڈ ہے یہ، اور یہ اٹلی میں سب سے بیسٹ برانڈ ہے. اور EP2 پرو کا یہ مجھے اٹیلین سے سائیکل ملی تھی، اور اس سے بھی میں نے بہت چیزیں وغیرہ دیکھی کافی. سب سے پہلے آپ نے اس کی دیکھنی ہوتی گراری سیٹ کی، کہیں سے کوئی گراری خراب تو نہیں. ٹھیک ہے، اور یہ دیکھیں یہ آلموسٹ نیو ہے بالکل، گراری وغیرہ. بالکل چین کی کنڈیشن ہوتی ہے. پھر اس کے علاوہ آپ دیکھتے ہو کہ پیڈل وغیرہ کہیں سے بریک نہیں، کہیں سے ڈیمیج نہ ہو، ایکسیڈنٹل نہ ہو. ٹھیک ہے، مین چیز اس کے پیڈل بھی آلموسٹ نئے ہیں بالکل. اور یہ چین کی آپ لک سے دیکھ سکتے ہیں یہ کالی بھی نہیں ہوئی، اس کا مطلب ہے کہ یہ بہت کم یوز ہوئی ہے. بالکل. اور دوسرا اس کے فنکشنز بہت سارے ہیں. یہ میٹر اس کا اگر آپ دیکھیں این کا، یہ اس کے 9 ٹوٹل گیئرس جاتے ہیں. ابھی میں نے 7 پہ موڈ سیٹ کیا ہوا ہے. اچھا، تو یہ آن ہے ابھی آن نہیں ہے، میں آن کروں گا. ابھی اس کی بیٹری کیونکہ ڈاؤن ہے اس وجہ سے. اور یہ اس کے ساتھ ہی ملا تھا اس کا ہولڈر موبائل کا. اگر آپ نے گلوبو وغیرہ کرنی ہے، کچھ بھی کرنا ہے تو یہ آپ آرام سے اس میں کر سکتے ہیں. سیکنڈ، یہ اس کی رنگ ہے. یوزلی دوسری آتی ہے، ہارن آتا ہے پراپر جو تھم والا ہوتا ہے، مگر یہ اس نے اٹیلین نے ششکے کے لیے بیسیکلی یہ والا لگایا ہے. اور باقی یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ گیئر اپ، اور جتنے 7 موڈس تک ٹرین کر سکتے ہیں. 9 موڈس کی اگر سیٹنگ کرتے ہیں تو 9 موڈس کر سکتے ہیں. موڈس مطلب موڈس ان سین کہ آپ گیئر لگا رہے ہیں اور اس سے آپ ڈاؤن کرتے رہتے ہیں گیئر. باقی اس کے علاوہ یہ دوسرا اس کا فنکشن یہ ہے کہ اگر آپ نے اس کو رینج بڑھانی ہے، مطلب کہ گراری جو ہے اسپیڈ بڑھانے کے لیے، یہ مینول سسٹم ہے اس کا. تو یہ اس کا الیکٹرک سسٹم ہے. تو اس طرح ہوتا ہے. اب آپ کی چوائس ہوتی ہے کہ آپ مینول میں بھی چلا سکتے ہیں، الیکٹرک میں بھی چلا سکتے ہیں، ڈپینڈنگ آن بیٹری. اب اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ آپ کو سب سے پہلے تو ٹرانسپورٹ کا ایشو نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، وہ اس لیے کہ کتانیہ میں تھوڑا سا ٹرانسپورٹ کا بس کا آگے پیچھے سسٹم ہو جاتا ہے. زیادہ برا بھی نہیں ہے مگر زیادہ اچھا بھی نہیں ہے. تو لہٰذا اس لحاظ سے یہ بیسٹ ہے کہ آپ سائیکل لیں فار ایگزامپل. اور اس کی کیئر بہت ضروری ہے کیونکہ پورے اٹلی میں ایک مسئلہ رہتا ہے کہ چوری ہو جاتی ہے سائیکل، اور کافی لوگوں کے ساتھ ہوا بھی ہے. تو اس کے لیے سب سے بہتر ہے کہ آپ 2 لاک خریدیں. ایک چین والا لاک ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں میٹل لاک. ٹھیک ہے، اور ایک ہوتا ہے سمپل جس طرح یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ آپ نے میں نے ایک لیا ہوا، فی الحال آپ نے ایک ہی لاک خریدا ہوا ہے. ایک خریدا ہوا، دوسرا میں نے آرڈر کیا ہوا ہے. اچھا، تو کتانیہ کے اندر لاک لگانا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ فار ایگزامپل آپ کہیں پہ بھی جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پہ تھیفس بہت ہیں اور تھیفس کا پتہ نہیں چلتا. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کیونکہ ریزن یہ ہے کہ ان میں مروکنس بھی ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی بھی کاسٹ کے لوگ ہو سکتے ہیں، اور وہ مطلب اٹیلینس کم ہوتے ہیں، باقی جو فورنرز ہیں موسٹلی سم ٹائمز ایسا بھی ہوتا ہے اٹیلینس بھی کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے، مگر اٹیلینس کی ریشو پھر کم ہے ایز کمپیئر ٹو ادر. اب ہوتا یہ ہے کہ اس سائیکل کی ایک تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ مہنگی بہت ہے، کاسٹلی ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کو جو نئی ملتی ہے نا برانڈ نیو، وہ 1200 یوروز کی ملتی ہے. اب اتنے کی تو آپ گاڑی بھی خرید سکتے ہیں یہاں پہ، تو سیم پرائس کی ہوتی ہے. مگر اس کا یہ ہے کہ بینیفٹ، آپ کیونکہ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ نے پارٹ ٹائم جابس کرنی ہوتی ہیں، یہاں آپ نے ٹائم سیو کرنا ہوتا ہے، تو آپ اس میں ٹریول کر سکتے ہیں. کوئی آپ نے گراسری کرنی ہے فار ایگزامپل، تو اس لحاظ سے یہ اوور آل بہت اچھی رہ جاتی ہے.
फिर आपने स्पेशली ये देखना होता है जिससे आप परचेज़ कर रहे हैं उसके डॉक्यूमेंट्स, और कोशिश करें कि उसके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स की पिक्चर्स ले लें या उससे वो फ़ोटोकॉपी करवा लें। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है जब भी आप किसी से परचेज़ करते हैं फेसबुक मार्केट से, तो ये आपने ज़रूर ख्याल रखना है। और इटली के अंदर जो ऑनलाइन मार्केट है वो ज़्यादातर जो फेसबुक मार्केट ही चलती है, उसके अलावा भी कोई है? देखें, एक फेसबुक मार्केट है, ठीक है, उसके अलावा अगर आप जाएँ तो अमेज़ॉन में है। ठीक है, अमेज़ॉन से यूजुअली इटालियंस जितने भी लोग हैं वो अमेज़ॉन से परचेज़ करते हैं, लेकिन वो नहीं खरीदते हैं, वो बिल्कुल न्यू खरीदते हैं, ब्रांड न्यू। मगर ज़्यादातर यहाँ पे इंडियंस, पाकिस्तानी, बांग्लादेश जितने भी फॉरेनर्स हैं वो फेसबुक मार्केट से कोई भी आइटम परचेज़ कर लेते हैं। तो अभी आपने बताया कि जी आपने जो उसके डॉक्यूमेंट्स हैं वो लाजमी अच्छे तरीके से चेक करने हैं। ये क्यों चेक करने हैं? क्योंकि चोरी की साइकिल उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे साइकिल, क्योंकि इसका कोई नंबर प्लेट तो होता नहीं है, ठीक है, ना इसकी कोई रसीद होती है। जब आप परचेज़ करते हैं तो एज इट इज़ ये फोल्ड हुई होती है, इसको आपने अनफोल्ड करना होता है, इसको असेंबल करना होता है, डीअसेंबल्ड हुई होती है, असेंबल करते हैं। तो इसलिए अब इसकी क्योंकि नंबर प्लेट नहीं है तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि चोरी की भी हो सकती है। इस वजह से आपको ख़ास ख्याल रखना होता है, उससे एक एक चीज़ की डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर करनी है। वो अपने डॉक्यूमेंट्स लाजमी जो है ना आपको फ़ोटोकॉपी में दे, या फिर आप उसकी पिक्चर्स ले लें ताकि कल को आपके पास प्रूफ हो कि आपने इस बंदे से परचेज़ किया, और हो सके तो उसके सिग्नेचर लाजमी लें। फॉर एग्ज़ाम्पल वो कोई आप पेपर ले लें जिसमें आप ड्राफ्ट लिखते हैं, ड्राफ्ट लिख के और आप उसमें सिंपल इंग्लिश में लिख सकते हैं और इसके साइन करवा लें तो वो ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स के साथ। तो उसका ये फ़ायदा हो जाएगा कि एक तो वो जो चोरी की साइकिल होती है उसका भी मसला ख़त्म हो जाएगा, और दूसरा ये कि आपके पास सेफ एंड आपके पास कोई प्रूफ होगा कि आपने परचेज़ किया। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हैं। बाकी ये जो बैग आप देख रहे हैं ये एंग्वी का ओरिजिनल ब्रांड का बैग है, और ये मुझे वैसे मार्केट प्लेस में 100 यूरोज़ का है। ठीक है, उसने मुझे इसके साथ ही साइकिल के साथ गिफ्ट कर दिया है। ये इटालियंस बहुत अच्छे भी होते हैं, कुछ उनमें बहुत इस तरह भी होते हैं कि समटाइम्स नहीं समझ आती। ठीक है, तो अभी ये बता दें कि ये साइकिल की ओरिजिनल प्राइस कितनी है और आपने कितने की ली है? ये ओरिजिनल प्राइस मैंने जैसे आपको बताया 1200 यूरोज़ की। अगर आप अमेज़ॉन में जाएं मार्केट प्लेस में 1100 to 1200 यूरोज़ एंग्वी EP2 Pro के नाम से है। अगर आप यहाँ देख सकते हैं इसका ब्रांड का नाम है जी, और ये ओरिजिनल ब्रांड है एनवी का। और इसका ये है कि मुझे जो मिली है ये इस कंडीशन में 700 यूरोज़ की मिली है। ठीक है, ये 700 की मिली है, और आपने बताया कि ठीक है, और 1200 की ये नहीं है, नई साइकिल है। और इसकी कंडीशन के बारे में बता दें जो आपको मिली है। कंडीशन इस तरह की है कि ब्रांड न्यू है और इसने थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की हुई है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी ब्रेक्स की बात करूं तो ब्रेक्स इसमें इसने अच्छी क्वालिटी की ब्रेक्स लगाई हैं। ये अगर आप दिखाएं रेड कलर की है, ये डिस्क ब्रेक है, ये ब्रेक, ये बहुत अच्छी ब्रेक है। तो बस इसकी ये है कि आपने मेंटेनेंस टाइमली करनी होती है। और सेकंड चीज़ है कि उसने एक इजाफी चीज़ की हुई है, जिस तरह कि ये हॉर्न है फॉर एग्जांपल, ये इसने इस तरह का लगवाया हुआ है। यूजुअली जो आती है एंग्वी के वो आपकी मर्ज़ी होती, चॉइस होती है कि आप वो हॉर्न उतरवा के, क्योंकि उसकी इतनी साउंड ज़्यादा नहीं होती। तो इसकी ये है कि आप किसी को भी यहाँ पे हॉर्न इस तरह का देंगे तो कोई ना कोई आपको रिस्पॉन्ड करेगा। तो एग्जैक्टली तो ये चीज़ है। बाकी साइकिल की कंडीशन देखनी होती है, कहीं से टचेस ना हो। फिर आपने चला के सबसे पहले सारे मॉड्स चेक करने हैं, इसके हर चीज़ सही काम कर रही है, गरारी की सेटिंग्स कैसी हैं इसके फंक्शंस के ऊपर, ये आपने इंपॉर्टेंट देखनी है। आपने ब्रेक्स चेक करनी है, ब्रेक्स चेक करने के बाद आपने हर इसका फंक्शन टेस्ट करना है। और स्पेशली ये जो आप चीज़ देख रहे हैं ये इसका शॉक्स का लॉक सिस्टम है। अगर मैं इसको ऑन कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल इसको मैं अगर घुमाता हूँ इस तरफ को, तो ये लॉक हो जाएगा। फिर ये शॉक्स जो है ना प्रेस नहीं होंगे। ठीक है, मतलब ये शॉक अब्जॉर्ब नहीं करेगा, मतलब कि आपको चलाते हुए फिर महसूस होगा कि हाँ एग्जैक्टली ऐसा ही है। तो इसको ओपन रखना है हमेशा। ठीक है, और ये कि इसकी ड्राइव ट्रेन अगर देखा जाए स्पीड मैक्सिमम जो स्पीड जाती है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप चला सकते हैं। मगर चूँकि हम फॉरेनर्स हैं और हमें स्पेशली ट्रैफिक रूल्स का बहुत ख्याल रखना होता है यहाँ पे, तो आपने कोशिश करनी होती है कि आप स्पीड उतनी रखें जितनी आपके कंट्रोल में। तो क्योंकि इन केस अगर किसी को लग जाती है साइकिल तो प्रॉब्लम हो सकती है। फॉर एग्जांपल आपको कोई इंजरी हो सकती है, हॉस्पिटलाइजेशन हो सकती है। अगर आपका हेल्थ कार्ड नहीं बना हुआ तो बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि बेशक आप स्टूडेंट हैं मगर यहाँ पे हेल्थ कार्ड जो है आपका ऑलमोस्ट हाफ डॉक्यूमेंटेशन के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें रेजिडेंस परमिट है फॉर एग्जांपल। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हेल्थ कार्ड होना बहुत ज़रूरी है जब आप ये चला रहे हों। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और बता दें कि अभी आपने बताया कि ये 50 किलोमीटर मैक्सिमम जा सकती है, और एक तो इसकी बैटरी कितना टाइम निकाल देती है ये बता दें, और दूसरा ये बता दें कि पाकिस्तान में हम अगर अपने बाइक से इसको कंपेयर करें तो किस बाइक से कंपेयर कर सकते हैं। और चूँकि इसकी बैटरी चार्जिंग पे चलती है तो फिर हमें पेट्रोल वगैरह का भी इशू नहीं होता, तो उस पर कंपेयर कर दें सर। अच्छा, अगर मैं बात करूँ
पाकिस्तान की हमारे पास ये इसकी अगर पाकिस्तानी प्राइस देखी जाए तो 220 बनती है, 2,20,000 जो मैंने परचेज़ की है। वैसे ये बहुत ज़्यादा की है, 3,50,000 की पड़ती है। तो मैंने जो इसकी सबसे पहले बात करूँगा माइलेज की। माइलेज इन अ सेंस कि ये बैटरी फुल चार्ज हो तो कितने निकाल जाती है आपका प्रॉपरली 1 डे जो है, यानी कि अगर मैं बात करूँ 24 आवर्स आपकी बैटरी निकाल जाती है, मगर ये नॉर्मल मोड में है। अगर आप फॉर एग्जांपल ग्लोवो कर रहे हैं, कुछ ऐसा सीन है तो 8 घंटे आपका मैक्सिमम इजीली निकाल सकती है। मतलब इन केस अगर आप ग्लोवो भी कर रहे हैं तो दिन में एक दफ़ा बैटरी चार्ज एक बार चार्ज आपका किया और पूरा दिन निकाल जाएगा। एग्जैक्टली। अब उस पर डिपेंड करता है कि आप कितने पेडल्स मतलब मैनुअल ट्रांसमिशन में चला रहे हैं और कितना आप इसको इलेक्ट्रिक पे चला रहे हैं। अगर आप 50-50 की रेशो रखते हैं फिर आपका आराम से 7-8 आवर्स मतलब 7 आवर्स तक मिनिमम निकल जाएगा। और अगर आप इसको टोटली इलेक्ट्रिक पे चला रहे हैं तो 5 आवर्स 6 आवर्स इस तरह इसकी टाइमिंग होती है। क्योंकि रीज़न ये है कि ये कतानिया जो एरिया ये माउंटेन हिली एरिया है, तो इसमें उतराई भी आएगी और चढ़ाई भी आएगी। तो चढ़ाई पे जितनी पावर ज़्यादा लगेगी, ऑब्वियसली लॉजिकली बात सोचें तो आपकी बैटरी जल्दी डाउन हो जाएगी। ठीक है। तो स्पीड को इसकी आप कंपेयर कर रहे थे पाकिस्तान में किसी भी व्हीकल, अगर मैं स्पीड की बात करूं तो ये 70 तक चली जाती है, 70 किलोमीटर ये इसकी मैक्सिमम स्पीड है जो आप इसको कर सकते हो। और ये बड़ी डेंजरस स्पीड है क्योंकि ये अगर मैं बात करूं CD70 हम चलाते हैं पाकिस्तान में तो ऑलमोस्ट उतनी ये स्पीड दे देती है। तो ये एक अच्छा सीन है इसका। और दूसरा इसकी प्राइस रेंज बहुत रीज़नेबल है यहाँ के हिसाब से देखा जाए। और जो मार्केट प्लेस से आपने लिया तो आपको काफ़ी एग्जैक्टली मुझे बहुत ज़्यादा रिलीफ मिल गया इसमें। मार्केट प्लेस का यही फ़ायदा होता है कि अगर आप कोई ब्रांड न्यू चीज़ लेना चाह रहे हैं और आपको डर होता है कि खुदा न खास्ता चोरी हो जाएगी या ये वो, तो आप रीज़नेबल प्राइस में परचेज़ कर सकते हैं ऑनलाइन मार्केट प्लेस से, फेसबुक मार्केट प्लेस से। तो ये इसका शॉर्ट सर्वे था। बाकी साकिब भाई आप कुछ जानना चाहेंगे तो ठीक है। ये शॉर्ट सर्वे पूरा हो गया तो ऑलमोस्ट आपने सारी डिटेल खुद ही बता दी है। तो बस इन दी एंड आप ये कह देंगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यार ज़रूर इन भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें। साकिब भाई हमारे बड़े प्यारे भाई हैं, इनके चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों में। रीज़न ये है कि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे कंटेंट्स बना रहे हैं, तो ये एक प्लस पॉइंट है। तो इन दी एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को जितना लाइक कर सकते हैं लाइक करें ताकि मैं इसी तरह का म्यूज़िक कंटेंट आपके लिए लेके आता रहूँ। ठीक है, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।